class 4th and welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to sharing the books back exercise and question answer of your science books chapter 6, the green plants. But before that, I shared its explanation video with you. I hope you must have seen it, and if you have not, then go to the video. Definitely watch the chapter explanation video, because once you understand the chapter, then question answer will be very easy for you. I have shared chapter explanation videos link in the description box. Now we will start the books back exercise and its question answer. So first question is objective type question answer and A, fill in the blanks with the correct words. तो यहाँ fill in the blanks हमें सबसे पहले करना है और इसके लिए करेक्ट वर्ड्स यहाँ पे साथ में दिए गए हैं, तो जो वर्ड करेक्ट है उसके साथ हमें ये पूरा करना है। तो नंबर 1 पे है मोस्ट प्लांट ऑन द अर्थ आर ग्रीन और नॉन ग्रीन एंड द करेक्ट वर्ड इज ग्रीन। मोस्ट प्लांट ऑफ द अर्थ आर ग्रीन। नेक्स्ट नंबर 2, द डैश लेट एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लीफ एंड द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। स्टोमेटा ही लीफ के अंदर एयर को अंदर और बाहर करने में मदद करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा वो स्टोमेटा होगा। द स्टोमेटा लेट एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लीफ। नंबर 3, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ डैश in the leaves and the correct word is chlorophyll. So the sentence is green plant make their own food with the help of chlorophyll in the leaves. Number 4, the dash takes in prepared food for the leaves to other parts of the plant and the correct word is stem. The stem take the prepared food from the leaves to other parts of the plant. Number 5, extra food prepared by the leaves is stored as ऑप्शन में है आयोडीन और स्टार्च in different part of the plant and the correct word is starch. Extra food prepared by the leaves is stored as starch in different parts of the plant. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले है हमारा वेन्स, और वेन्स को हम मैच करेंगे। वेन्स को हम मैच यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोर्ट विद इन द लीफ। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस, और इसकी करेक्ट मैचिंग जाएगी डी के साथ, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। नेक्स्ट स्टोमेटा, और इसकी मैचिंग हमारी होगी टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, क्योंकि स्टोमेटा लिप्स के अंदर एयर को अंदर और बाहर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज, और इसको हम मैच करेंगे प्रिपेयर्ड फूड से। ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फूड होता है प्लांट्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च, और इसकी मैचिंग जाएगी हमारी स्टोर्ड फूड के साथ, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो पेड़ पौधों का स्टोर्ड फूड होता है। जो फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो जब स्टोर्ड हो जाता है तो वो स्टार्च फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, choose the correct option and the first question is which of these help to transport substances within the leaf and the options are stomata, leaf blade, chlorophyll and veins and the correct answer is veins. Next, which of these help to absorb water and minerals for the plants and the options are roots, stem, leaves and veins and the correct answer is root. Next, number 3, which part of leaf remove water vapor and oxygen after photosynthesis and the options are leaf blade, main vein, stomata and side vein and the correct option is stomata. Next, number 4, which of these
will not be needed by leaves for making food? And the options are carbon dioxide, water, sunlight, and none of these. And here the correct answer is none of these. Next, number 5. Which of these is not true about photosynthesis? And the options are food prepared is in the form of sugar, food prepared is in the form of starch, carbon dioxide, water and light are raw materials, chlorophyll is needed to absorb light. And the correct answer is food prepared is in the form of sugar. Number 6. Which of these shows the presence of starch? Iodine turns reddish brown, starch turns to glucose, iodine solution turns bluish black, leaves turn green. And the correct answer is iodine solution turns blue black. Number 7. Which of these are the main producers of food? And the options are green plants, animals, sun, none of these. And the correct answer is green plants. Now the next question number 8. Which of these shows dependence of animal on plants? And the options are plants give off oxygen that animal use for breathing, animal make food for plants, number C में animal depend on green plants for food, and D is both A and C. And the correct answer is both A and C. Next question is very short answer type question, and the question is give one word for the following. So let's start. The first question is the green substances present in leaves are called chlorophyll. ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं. ओके, तो इसकी स्पेलिंग CHLOROPHYLL ऐसे आप लिख लेंगे. और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें. The process by which green leaves prepare their own food is called photosynthesis. तो photosynthesis की स्पेलिंग भी यहाँ पे PHOTOSYNTHESIS. Number 4. The food prepared by the process of photosynthesis is called glucose. Okay. And the last question is the chain that shows a series of organisms where each member depends on the lower member in the series for food is called food chain. तो यहाँ पे देखिए हमने बुक्स की जो बैक एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर स्टोमेटा, हाउ डू दे हेल्प द प्लांट्स? एंड द आंसर इज द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ contain million of tiny opening. These tiny openings are called stomata. The stomata let air flow in and out of the leaf. Stomata क्या होता है? जो पत्ते होते हैं उनके अंडर साइड पे यानी कि नीचे की तरफ बहुत सारे मिलियंस ऑफ ओपनिंग्स यानी बहुत से छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और ये लीव्स के अंदर हवा को अंदर बाहर करने में मदद करता है. डिफाइन नंबर 2. डिफाइन फोटोसिंथेसिस. नेम द रॉ मटेरियल नीडेड बाय प्लांट फॉर ईट. एंड द आंसर इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द रॉ मटेरियल नीडेड बाय प्लांट फॉर ईट आर लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ फोटोसिंथेसिस डिफाइन करनी है आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसके लिए रॉ मटेरियल जो प्लांट यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. तो जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स का उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू ग्रीन लीव्स गेट थिंग नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस? कि ग्रीन लीव्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उन्हें कैसे मिलती हैं? तो आंसर होगा द ग्रीन लीव्स गेट थिंग्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस
थ्रू द प्रोसेस गिवन बिलो, और यहाँ मैंने आंसर को पॉइंट में लिखा है ताकि आप इसे जल्दी से याद कर सकें। और सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरीड थ्रू द स्टीम टू द लीव्स। नंबर 2, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द लीव्स इट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू स्टोमेटा। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन लीव्स को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो कैसे इसे प्राप्त करते हैं, सबसे पहले जो उनकी जड़ें होती हैं वो पानी और जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो पत्तों पर पड़ता है, जहाँ की जो क्लोरोफिल है वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू टेस्ट ए लीफ फॉर स्टार्च। आप कैसे पता करेंगे कि जो लीफ होते हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंस होता है। तो हम इस आंसर को इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले, थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज वी टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। स्टार्च टेस्टिंग लिखेंगे और सबसे पहला हम जो लाइन लिखेंगे वो होगा, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वी नीड टू, नंबर 1, टेक ए लीफ एंड बॉयल इट इन वाटर, देन डीप इट इन स्प्रीट, वॉश इट इन कोल्ड वाटर। सबसे पहले आप पत्ते को लेंगे, उसे उबालेंगे और फिर उसे आप स्प्रीट में डुबोएंगे। इसके बाद आप उसे ठंडे पानी से धोएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, और उसके बाद आप उस लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालेंगे। ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, द कलर ऑफ द लीफ इज चेंज, कि पत्ते का रंग बदल गया है। और कंक्लूजन में आप लिखेंगे, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द पार्ट्स ऑफ द लीफ दैट कंटेन स्टार्च टर्न द आयोडीन ब्लू ब्लैक या ब्लूइश ब्लैक। तो अगर पत्ते में स्टार्च मौजूद है तो उस पत्ते का रंग कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। And the answer is, plant and animal are dependent on each other in many ways. Green plants are the main producers of food. Animals depend on this plant for their food. Thus, a chain exists in nature for obtaining food. The series for food is called a food chain. Increase or decrease in number of either plant or animal, the balance in nature will be disturbed. Besides, plant also give out oxygen which is needed by animal to breathe. Animal is return give out carbon dioxide which is needed by the plant for photosynthesis. तो इस इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल को मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और यहाँ भी जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा तो है, बट करेक्ट आंसर ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से दिखाना होगा कि प्लांट और जो एनिमल है वो किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कैसे उनके बीच का जो संबंध होता है वो अन्योन्य आश्रय का होता है। तो इसे यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज और आपके ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और मैं आशा करती हूँ आप क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे और अपने घर पे अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू बच्चों।